Good morning, students. I am Devanand, your English teacher, is in front of you once again. Today, I would like to teach you poem 3 Rain on the Roof, written by Coates Kinney. Let us see about the poet first. सबसे पहले हम पोएट के बारे में बताते हैं. Coates Kinney was an American lawyer, politician, journalist, and poet. He wrote Rain on the Roof. He was born on 24th November 1826 and died in 25th January 1904. This poem was set to music, means it was musically constructed. It was composed and sung on music. This poem was set to music and was the most popular. The rhyme scheme of this poem is A B C B D E F E. A B C B D E F E. This is the rhyme scheme of the poem. Now let us see about the poem. The poem is about rain. It is clearly understood. The title of the poem is Rain on the Roof. So easily we can understand that this poem is about rain. It is indicated by the title. The poet tells us the memories related to the rain. He remembers his past childhood memories when he hears the sound of raindrops falling on the roof of his house. यानी जब पोएट छोटा था वो अपने बचपन की यादें वो रिमेंबर करता है, याद करता है, जब वो अपने घर के अंदर में था और उनके घर के छप्पर के ऊपर, रूफ के ऊपर रेनड्रॉप्स गिरते थे. उस समय की वो अपनी बचपन की यादें इस पोएम में बताते हैं. देयर इज अ हीलिंग पावर इन द फॉलिंग ऑफ द रेन ऑन द रूफ. द पोएट सेज दैट it is a pleasant experience. It's a very beautiful, very happy experience to live and sleep comfortably in a cottage on a rainy night. यानी जिस रात में बारिश होती है, ऐसे बारिश के मौसम वाली रात में एक छोटे से झुग्गी में, झोपड़ी में, कॉटेज में सोना, ये बहुत ही अच्छा, सुखद ऐसा एक्सपीरियंस महसूस होता है. ऐसे अपने पोएट कहते हैं. Now let us see stanza-wise summary, stanza-wise explanation of the poem. Before that, I would like to tell you some new words which are given here in the poem. Humid, Humid. Humid means wet. नमी से भरा हुआ, या in geography already you have studied humidity. Humidity means the percent of water vapor contained in air. यानी हवा में पानी की आर्द्रता, वाटर वेपर का परसेंट, दैट वी कैन कॉल ह्यूमिड, यानी नमी से भरा हुआ. होवर, HOVER, होवर. होवर मीन्स मूव अराउंड समथिंग. आर, अपीयर ओवर, यानी मंडराते रहना, मंडराते हुए दिखना, इधर उधर घूमना. दिस इज द मीनिंग ऑफ होवर. स्टैरी स्पियर्स मीन्स स्टार एज स्पियर, तारे रूपी क्षेत्र या तारों का एरिया, वी कैन कॉल एरियाज ऑफ स्टार्स. मेलांकली मीन्स सैड, दुखी, उदास. पैटर इट्स अ साउंड ऑफ रेन, पानी के गिरने का आवाज, दैट इज पैटर. शिंगल मीन्स पीसेस ऑफ स्टोन और पीसेस ऑफ वुडन टाइल्स यूज ऑन रूफ, घर के छप्पर के ऊपर वो लकड़े के बने हुए टाइल्स वगैरह लगाना, दैट सिंगल्स. इको यानी गूंजना, रिपीटेड साउंड. फैंसीज मीन्स इमेजिनेशंस, कल्पनाएं. रिकलेक्शंस मीन्स मेमोरीज, यादें. वूफ, WOOF, वूफ मीन्स अ वीविंग, बुनना, द थ्रेड वोवेन अक्रॉस द लूम. एगोनी मीन्स बीता हुआ, हैपन बिफोर. आर बायगॉन, पहले हुआ वाला, यानी जो पहले
जो पहले हुआ है वो चीज़, एगो ने। हियर एर, E-R-E, ir means before. It's old English word, old poetic word. Means in olden days, this word was used for before. Ir means before, पहले. Fun, F-O-N-D, fun means dear. Refrain, actually the meaning of refrain is the lines which are repeated after every stanza. यानी हर स्टांजा होने के बाद में जो लाइन रिपीट होती है उनको रिफ्रेन कहते हैं. बट हियर द मीनिंग ऑफ रिफ्रेन इज म्यूजिक आर साउंड ऑफ रेन. नाउ लिस्ट, लिस्ट मीन्स द लिस्ट इज ऑल्सो ओल्ड इंग्लिश वर्ड यूज हियर इन दिस पोएम. द मीनिंग ऑफ लिस्ट इज लिसन, यानी ध्यान देना. नाउ लेट अस सी explanation of the poem, stanza wise explanation of the poem. I would like to read these lines. When the humid shadows hover over all the starry sphere, and the melancholy darkness gently weeps in the rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Now see explanation of this line. In this stanza, the poet says that at this time the cloud hover means the cloud collect all over the stars, means stars are hidden behind the cloud, making them unseen at that time. Means we are not, if suppose cloud appear in the sky, we are not able to see the stars. यानी जब आसमान में बादल इकट्ठा होते हैं तो हम तारों को रात में देख नहीं पाते. दिस सैड डार्कनेस मेक्स हिम सैड एंड रिफ्लेक्टिव. तो ये अंधेरा उसको दुखी बनाता है लेकिन रिफ्लेक्टिव भी बनाता है बाय इमेजिनेशन. द रेन सीम्स टू मिरर हिज इमोशंस एज इट लुक्स लाइक टीयर्स फॉलिंग सॉफ्टली फ्रॉम ह्यूमन आईज. यानी यहाँ कवि ये बताता है यह उदासी वाला अंधेरा उसे उदास तो बना देता है लेकिन चिंतनशील भी बना देता है. मीन्स ही वॉज एबल टू थिंक. और वर्षा उसकी भावनाओं को दर्शाती है क्योंकि यह मनुष्य की आंखों से धीरे धीरे गिरने वाले आंसुओं की तरह है. मीन्स हियर ही कंपेयर द टीयर्स, ही कंपेयर द रेन ड्रॉप्स ऑफ रेन विथ टीयर्स. इट इज अ ब्लिस देन टू प्रेस द पिलो लाइंग इन अ कॉटेज बेड when the rain is pouring on the roof. यानी जब वर्षा छत पर गिर रही हो तो कॉटेज के बिस्तर में लेटते हुए तकिया दबाना एक आशीर्वाद जैसा है, ब्लिस है. The sound of raindrop on the roof enables the poet to recover from his gloomy thoughts. वर्षा के छत पर गिरने की आवाज़ कवि को उसके उदास विचारों से बाहर निकलने के योग्य बनाती है. मीन्स दैट द साउंड ऑफ दैट रेन मेक्स द पोएट टू कम्स आउट फ्रॉम हिज सैड थिंकिंग आर अनहैप्पी थॉट्स. द स्टांजा रिवाइव्स अ पिक्चर, द स्टांजा रिवाइव्स अ पिक्चर ऑफ द रेन फॉलिंग एंड द पोएट रिसाइकलिंग इन अ कॉटेज बेड एट सच एन इवनिंग. तो यहाँ कवि अपने कॉटेज बिस्तर से आराम करते हुए कुछ तस्वीर को जीवित करता है, यानी अपनी पुरानी यादों को वो जीवित करता है. नाउ सेकंड स्टंजा एक्सप्लेनेशन आई एम टेलिंग लाइन्स यू कैन रीड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक. इन दिस स्टंजा, in second stanza, the poet describes how every tinkle of the raindrop on the shingles has an echo in his heart. यानी रेनड्रॉप जैसे वो रूप के ऊपर गिरते हैं तो वो इको साउंड करते हैं. मीन्स द साउंड ऑफ द रेनड्रॉप इट इकोज, वो गूंजता है. द रेनड्रॉप मेक्स अ टिंकलिंग साउंड फॉलिंग ऑन द हियर shingles. Here shingles means pieces of, already I told you, once again I am telling, pieces of wooden tiles which are used on roof. घर के छप्पर के ऊपर वो लकड़े के टाइल्स फिट करते हैं वो. The raindrop makes a tingling sound falling on the shingles. Each sound made by the rain
is repeated the next instant by the beating of his heart. What the poet has been imagining at this instant is beginning to assume a physical shape before his eyes. The poet becomes nostalgic and all his memories come to acquire a physical shape because of rain falling on the roof. These memories are not distinct but have entangled into a single patchwork. These have been woven into a kind of cluster as he listened to the patter of the rain upon the roof. यानी इस पोएम में आई एम टेलिंग यू हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ दिस पोएम. इस स्टांजा में पोएट कहता है कि रोडियो पर वर्षा के गिरने की खनखनाहट उसके दिल में गूंजती है. वर्षा की बूंदें गिरने की खनखनाहट उत्पन्न करती है. वर्षा से उत्पन्न हर एक आवाज़ उस क्षण उसके दिल के चलने की आवाज़ से दोहराती है. इस क्षण जो कुछ कवि सोच रहा है वह उसकी आंखों के सामने एक फिजिकल रूप में प्रकट होता है. कवि वर्षा के छत पर गिरने के कारण यानी रेनड्रॉप्स छत पे गिरने के कारण याद में आतुर हो जाता है और उसकी सारी यादें एक प्राकृतिक रूप लेने लग जाती है. ये सभी यादें स्पष्ट नहीं हैं बल्कि एक अकेले ये सभी स्मृतियाँ उसकी स्पष्ट नहीं है. ये एक प्रकार की कुंज में बनी हुई है. जैसे वह वर्षा की पैटरिंग साउंड वो सुनता है उस तरह उसकी ये यादें हैं. यानी ये यादें स्पष्ट नहीं है. जैसा द साउंड ऑफ रेनड्रॉप it is not continuous and clear, like that his memories are also not clear. Now last stanza I am telling you. अब उसकी यादों में वो में से ही रिमेंबर्स हिज मदर, वो अपने माँ को याद करता है जैसे वह वर्षा में किया करती थी. मीन्स when the poet was small, when the poet was child, that time his mother used to remember him. Now the poet is remembering his mother. It means that वह स्वप्न दृष्टाओं का प्रातकाल से पहले सम्मान करती थी और सुबह होने से पहले उन्हें छोड़ देती थी. Now last stanza. In this stanza the poet says that in the cluster of his memories, the memories of his mother comes first. उसके मम्मी की यादें आती है when the raindrops fall on the roof of his cottage. In his childhood, उसके बचपने में his mother used to look at him and his sibling as they were sleeping, having some pleasant dream. तो वो she used to look at them as such every night. यानी हर रात उसकी मम्मी उनको देखा करती थी कि whether her children died or not. She knew that she won't see them again till the dawn. क्योंकि उनको मालूम था कि सोने के बाद में डायरेक्ट वो मॉर्निंग में डाउन टाइम में ही वो उनको देख पाएंगी. इन दिस स्टांजा द पोएट इस्टेब्लिश अ काइंड ऑफ इमोशनल बॉन्ड विथ हिज मदर थ्रू रिकलेक्टिंग हिज पास्ट मेमोरीज, चाइल्डहुड मेमोरीज. तो इस आखिरी स्टांजा में कवि उसकी माँ को सर्वप्रथम याद करते हैं. ही रिमेंबर्स हिज मदर फर्स्ट. ही रिकलेक्ट्स हिज चाइल्डहुड मेमोरीज. उसके बचपन में उसकी माँ उसको और उनके भाई बहनों को देखा करती थी जैसे वे कुछ आनंदमयी स्वप्न लेते सोते थे. ऐसे वह उनको हर एक रात देखा करती थी. वह जानती थी कि वह उन्हें दोबारा सुबह तक नहीं वो देख पाएगी. तो इस आखिरी स्टांजा में कवि अपने माँ के साथ अपने भूतकाल को याद करता है और यहाँ एक इमोशनल बॉन्ड यानी भावनात्मक संबंध जोड़ता है, प्रस्थापित करता है. सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स.